नमस्कार प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट polar pistil interaction, and this is a part of class 12th chapter number 2, reproduction in flowering plants. Okay, now till now we have studied microsporogenesis, megasporogenesis, thereafter pollination, and after pollination the next event will be fertilization. But before fertilization, there occurs pollen pistil interaction. Now, what is this pollen pistil interaction? Now, all the events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters into the ovule are called pollen pistil interaction. pollen grains के स्टिग्मा से, ये स्टिग्मा है. Now, pollen grains when are received on the stigma, now they may be of same species, or they may be of different species, और different species के भी हो सकते हैं. Now, if they are of same species, only then they are right type, and only then development of pollen tube can happen. If they are not of same species, if they are of different species, then the pollen germination will not happen. Further, ये भी आपने ध्यान रखना है, if the pollen grains are self incompatible, अगर self incompatibility, if the pollen grains are self incompatible, then also the pollination will happen, but fertilization or the development of pollen tube is not going to happen. That means this stigma is going to reject the pollen grain. अगर सेम स्पीशीज का है तो ही होगा. बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने घर में याद रखिए, इफ सम स्ट्रेंजर कम्स, सो डू यू ओपन द डोर डायरेक्टली टू द स्ट्रेंजर? नो, you don't open the door, you ask the stranger whether he is a known person or unknown person to give some identification. If you recognize, only then you open the door. If you don't recognize, then you don't open the door. That is the correct method. In the same way, the stigma only allows the right type of the pollen grains to germinate, and if the pollen grains are not of the same species or they are compatible, then the stigma rejects those pollen grains. Stigma reject कर देगा, directly rejects, and there will be no growth of the pollen tube, and there will be no fertilization. कोई भी fertilization नहीं होगी. तो हमें क्या क्या पढ़ना है अब इसके अंदर? we are going to study about growth of the pollen tube. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. अब ये पोलन ट्यूब ग्रोथ होने के बाद कहाँ आ जाएगी? एंट्री इनटू द ओव्यूल. ओव्यूल में एंटर करेगा. आफ्टर एंट्री इनटू द ओव्यूल व्हाट विल हैपन? फर्टिलाइजेशन. एंड व्हाट विल हैपन इन द एंजियोस्पर्म्स? दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस, formation of embryo and formation of endosperm. Now before talking all this, let us quickly revise. थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी हम बात कर लेते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, let us talk about the embryo sac. Okay, embryo sac. Now which is the most common type of embryo sac? सबसे common type का embryo sac है कौन सा? That is a polygonum type. Okay, that is a polygonum type of embryo sac. This is the most common type. Now how many cells and how many nucleus are there in this? इसमें कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं? टोटल 7 cells and 8 nucleus. आपको पता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं. 3 cells here, 3 cells here, and 1 cell in the center. Okay, now this cell which is on this end, which is near the micropyle, that is micropylar end, there 3 cells are
दोज आर कॉल्ड एज एग एपरेटस। उसको हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। ये क्या है? हमारे एग एपरेटस है। ओके। अब इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में क्या है? दूर चलाजा। इससे दूर चला जा तो क्या है? चलाजल एंड। द सेल्स विच आर देयर ऑन द चलाजल एंड दोज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। एंड द सेल इन द सेंटर दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। और जो बीच वाला सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। नाउ व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ ऑल दीज सेल्स? अब इन सब सेल्स की क्या प्लॉइडी है? ऑल द सेल्स ऑफ एग apparatus those are haploid. All the cells of antipodal they are also haploid, and the central cell that is n plus n, that is not 2n. There are two different nucleus. There are two polar nuclei, and each one is n plus n. These fuse just before the fertilization. Fertilization से पहले fuse होते हैं, उससे पहले। अब बीच वाला सेल हमेशा कौन सा सेल है? एग सेल। बीच वाला सेल हमेशा एग सेल है। और इसके साथ की दो सहेलियां, ये कौन से सेल हैं? दीज आर सिनर्जिड्स। इनका नाम क्या है? सिनर्जिड्स। ओके। सो एग apparatus में क्या है? इन द सेंटर देयर इज अ एग सेल, और साथ वाले दो क्या हैं? सिनर्जिड्स है। इन द सेंटर देयर इज अ एग सेल, and along with it there are present two synergids. Now what is the rule? Egg after fertilization it will form zygote. Egg से तो क्या बनता है? From the egg what is formed? Zygote, all of you know. Now what will be the central cell doing? Central cell इससे क्या बनेगा? Endosperm. From central cell what will be formed? Endosperm. And what is the endosperm? That is the nutritive tissue which will provide food, nutrition to the developing embryo. ये developing embryo को क्या देता है? Food देता है। Okay. The main purpose of double fertilization is development of the endosperm. Endosperm की development होनी चाहिए ताकि क्या कर सके कि जो पहले तो न्यूसेलस प्रोवाइड कर रहा है, न्यूसेलस खत्म हो जाएगा। न्यूसेलस खत्म होने के बाद कौन फूड प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को? एंडोस्पर्म। जब तक प्लांट डेवलप नहीं हो जाता टिल दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म। ओके। एट द टाइम ऑफ सीड फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्म विल बी यूज्ड अप इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओनली इन फ्यू सीड्स, वेरी फ्यू सीड्स द एंडोस्पर्म इज लेफ्ट। मोनोकॉट्स में कुछ रह जाता है। ओके। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सिनर्जिड्स? अब सिनर्जिड्स का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ द सिनर्जिड्स? सिनर्जिड्स दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सिनर्जिड क्या करते हैं? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीपोडल सेल्स? एंटीपोडल सेल्स का क्या रोल है? एंटीपोडल सेल्स डोंट हैव एनी डायरेक्ट रोल इन द फर्टिलाइजेशन। एंटीपोडल सेल्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में। एंटीपोडल सेल्स क्या करते हैं? ये चलासल एंड पे हैं, और चलासल एंड के साथ में बाहर क्या है? न्यूसेलस है। सो व्हाट दे डू? दे कीप ऑन टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूसेलस। न्यूट्रिशन लेते रहते हैं एंड दे कीप ऑन प्रोवाइडिंग टू द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। क्यों सेंट्रल सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है? टू प्रिपेयर फूड फॉर द एम्ब्रियो, ताकि क्या कर सके? आगे एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड किया जा सके। ओके। फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो को ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए खाना प्रोवाइड करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग nutrition to the central cell. Okay. Now central cell has two polar nuclei. You can see there are two polar nuclei. This is one nuclei, this is two nuclei. There are two nuclei. So that is why there are how many nucleus? 8 nucleus and 7 cells. 7 cell, 8 nucleated embryo sac. Most common type polygonal type of embryo sac. चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें हम, जरा सी इसके और डिटेल में हम चले जाते हैं। अब व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर? थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ताकि हमारे को इजी हो जाएगा फर्टिलाइजेशन को स्टडी करने में, है ना। ये सारी बातें हम कर चुके, फिर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। चलिए लेट अस टॉक अबाउट द
स्ट्रक्चर ऑफ द एग एपरेटस। एग एपरेटस का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। चलिए बना लेते हैं एग एपरेटस। ये हमारा माइक्रोपाइलेंड है। ओके, दिस इज आवर माइक्रोपाइलेंड। नाउ टू सेल्स हियर, these are two our synergids, okay, and the central will be egg cell, okay। ये बीच वाला क्या है, egg cell है, and these two are synergids। ये दोनों क्या है, synergids हैं, okay। Now you know that inside the synergids there is filiform apparatus। filiform apparatus क्या होता है, ऐसे finger shaped structures होते हैं, that is called as filiform apparatus। तो पहली चीज तो क्या है, filiform apparatus है, ओके। उसके अलावा और क्या चीज होती है, दूसरी चीज क्या चीज है बेटा, that is what is the main characteristic of the plant cell। plant cell में क्या होता है बेटा, it has a large central vacuole। इसमें एक large central vacuole होता है। अब प्लांट सेल में जो एग सेल है, एग सेल में क्या होता है, द वैक्यूल इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा, वैक्यूल होगा हमेशा, ओके। एंड द न्यूक्लियस इज टूवर्ड्स द सेंटर, और जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर की तरफ होगा, ओके। द न्यूक्लियस इज टूवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। लेकिन जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स में क्या होगा, द न्यूक्लियस इज टूवर्ड्स द पेरिफ्री, बाहर की तरफ होगा, और जो हमारा वैक्यूल है, वैक्यूल इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो वैक्यूल हमेशा सेंटर की तरफ होगा, टूवर्ड्स द सेंट्रल सेल, एंड द न्यूक्लियस इज ऑलवेज टूवर्ड्स द पेरिफेरी। नाउ व्हाट दिस वैक्यूल डू, अब ये वैक्यूल क्या करेगा, ऑल ऑफ यू नो दैट वैक्यूल स्टोर्स द फूड, वैक्यूल फूड को स्टोर करते हैं, ओके। सो if it is towards the periphery, so there is lesser chance of damage to the egg cell। egg के डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, okay। and when the pollen tube will enter into the egg cell, so because of the pressure the egg nucleus may not be harmed। जो पोलन ट्यूब घुसेगी तो उसके नुकसान नहीं होना चाहिए एग को, ओके। सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ये हमेशा क्या है, बेनिफिशियल है कि जो वैक्यूल है वो बाहर की साइड है, तो जो भी प्रेशर होगा दैट विल बी अपॉन द वैक्यूल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन है, ओके। फिलीफॉर्म apparatus आपको पता है, दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स और दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which are projected little bit even outside the synergids। ये synergids के थोड़े बाहर भी हो सकती हैं। Now what is their function, बार बार हम वही बात करें भाई, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों है ये चीज, क्यों है ये फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस। These finger like projections they help in absorption and transportation of the nutrients into the embryo sac from the nucellus। ये क्या करता है, न्यूसेलस से बार बार न्यूट्रिशन लेके कहाँ डालेगा, इनटू द एम्ब्रियो सैक, ओके। अब क्या होगा, धीरे धीरे उधर से एंटीपोडल सेल्स भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं न्यूसेलस से और एम्ब्रियो सैक में डाल रहे हैं, इधर से फिलीफॉर्म apparatus भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं और एम्ब्रियो सैक में डाल रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द न्यूसेलस इज यूज्ड अप, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूसेलस यूज हो जाता है। अब क्या हो गया, आपको पता है प्लांट सेल्स दे आर कनेक्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल जो हमारा एंटीपोडल जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको चला जाएगा, टूवर्ड्स द सेंट्रल सेल, ओके। सो क्या करते हैं फिलीफॉर्म apparatus, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टूवर्ड्स द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल को भेजने में। द सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज, अब दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है बेटा, उसके अलावा ये क्या करते हैं, अदर देन दैट दीज फिलीफॉर्म apparatus, these are फिलीफॉर्म apparatus, ओके। उसके अलावा फिलीफॉर्म apparatus क्या करते हैं, जो इनका इंपॉर्टेंट काम है दैट इज दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। They help in attraction of the pollen tube. They release certain chemicals.
ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दे रिलीज सर्टेन केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। अब जब ये केमिकल्स रिलीज होंगे तो क्या होगा बेटा, दीज केमिकल्स डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, दीज डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएंगे इनटू द ओव्यूल। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म और कीमोटेक्टिज्म। इसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं या कीमोटेक्टिज्म, दिस इज कीमोट्रॉपिज्म, इसका नाम क्या है, कीमोट्रॉपिज्म। अट्रैक्ट करें केमिकल्स की तरफ, ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की, दैट इज अ सिंगल सेल, उसकी ग्रोथ मूवमेंट हो रही है। और जब भी ग्रोथ मूवमेंट होती है तो वो कौन सी मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। नाउ बिकॉज द ग्रोथ इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द केमिकल्स रिलीज्ड बाय द फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म। ओके, उसके अलावा क्या होता है बेटा, दिस ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। और तीसरा काम ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, दे ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर व्हेन द पोलन ट्यूब विल एंटर। चलिए एक पोलन ट्यूब भी बना लो। व्हेन द पोलन ट्यूब विल एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओके किसी भी एक सिनर्जिड्स में, नाउ व्हाट विल बी देयर इनसाइड दैट, उस पोलन ट्यूब के अंदर होगा क्या। अब उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा बेटा, चलिए उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, इन द फ्रंट सबसे पहले क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस, दिस इज आवर ट्यूब न्यूक्लियस। और ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे क्या होंगे बेटा, टू मेल गैमीट्स, और उसके पीछे क्या है हमारे, ये दो रेड कलर वाले दो मेल गैमीट्स हैं। सो व्हेन द पोलन ट्यूब विल एंटर इनटू द सिनर्जिड्स, जब सिनर्जिड्स में एंटर करेगी तो ये क्या करता है, दे एक्ट एज द शॉक एब्सॉर्बर, शॉक एब्सॉर्बर की तरह काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो वो किससे एंटर करेगी, दैट विल एंटर थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस से एंटर करेगी। अब जैसे ही फिलीफॉर्म एपरेटस से एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा बेटा, द फिलीफॉर्म एपरेटस विल गाइड, तो वो क्या करेगा, गाइड करेगा उसको सिनर्जिड के अंदर। अब सिनर्जिड के अंदर आने के बाद क्या हो जाएगी, उसकी एक्स ओस्मोसिस हो जाएगी। बिकॉज ऑफ एक्स ओस्मोसिस द पोलन ट्यूब विल बर्स्ट, एक्स ओस्मोसिस होने की वजह से पोलन ट्यूब बर्स्ट कर जाएगी। एंड आफ्टर बर्स्टिंग व्हाट विल हैपन, द ट्यूब न्यूक्लियस विल फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द सिनर्जिड, ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। और जब दोनों फ्यूज करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, देन इट विल डीजेनरेट। ओके, अब क्या हो गया, फंक्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब एंटर कर गई तो पोलन ट्यूब का काम खत्म, सिनर्जिड का काम हो गया, सिनर्जिड का काम खत्म। ओके, सो बोथ विल डीजेनरेट, दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। सो फर्स्ट when the tube nucleus will fuse with the nucleus of the synergid, when the tube nucleus will fuse with the nucleus of the synergid, then it will degenerate, उसके बाद वो क्या कर जाएगा, degenerate कर जाएगा। अब न्यूक्लियस निकलेगा कैसे, बाय द बर्स्टिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बर्स्ट क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ द एक्स ओस्मोसिस, एक्स ओस्मोसिस की वजह से क्यों हो रही है ग्रोथ, दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। ओके, अब क्या हो गया, जैसे ही वो एंटर करेगी, एंटर करने के बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, किसका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, सिनर्जिड न्यूक्लियस विद द मेल, with the tube nucleus, not with the male nucleus, with the tube nucleus. When synergid nucleus will fuse with the tube nucleus, then the first synergid will degenerate and thereafter second will also degenerate after some time. दूसरा synergid भी धीरे धीरे क्या करेगा, उसके बाद degenerate कर जाएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। ओके, दोनों का फंक्शन खत्म हो चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी
दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे। क्या? लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की भी थोड़ी सी जल्दी से बात कर लो। अब ये पोलन ग्रेन था हमारा, ओके। सो दिस वन इज इंटाइन, इनर इज इंटाइन, ओके, एंड द आउटर लेयर, दिस लेयर इज एक्साइन। ये हमारी बाहर की लेयर है। ये क्या है? नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर है, इसका नाम क्या है? एक्साइन, ओके। अब बीच बीच में क्या है? ये जर्म पोर्स हैं, दीज आर जर्म पोर्स। So 3 germ pores are there. This is called as tricolpate condition. This condition is called as tricolpate condition. Now the exine. Exine is made up of sporopollenin. आपको पता है exine किसकी बनी होती है? sporopollenin की बनी होती है। Now this is the sporopollenin which help in identification of the pollen grain, whether it is of similar type or whether it is of different type. ये सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का, ये कौन रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है बेटा? ये स्पोरोपोलेनिन के केमिकल्स ही रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। while the intine that is made up of पेक्टोसेल्यूलोज। इंटाइन किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। फिर आपको बताया था और क्या खास बात होती है इसमें? इसके अंदर एक बड़ा सेल है जिसका नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा सा सेल है ना? और उस छोटे से सेल का नाम क्या था? आपको बताया था, विच इज फ्लोटिंग इनसाइड द वेजिटेटिव सेल, दैट इज जेनरेटिव सेल। बार बार ये क्वेश्चन पूछा कि भैया कितनी सेल स्टेज में होती है पॉलिनेशन? मोस्ट ऑफ द सेल्स इन मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होती है, ओके। अब 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो रही है। पॉलिनेशन हो गई, अब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है। नाउ पोलन ट्यूब कैन एंटर इनटू द ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब को एंटर करना है, ओके। नाउ दिस हैज 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट से एंटर कर सकती है। सो इट में एंटर थ्रू माइक्रोपाइल, और इट कैन एंटर थ्रू चलासा, और इट में एंटर थ्रू एनी अदर पार्ट, ओके, जैसे इंटेग्यूमेंट्स। सो इफ इट एंटर्स थ्रू द पोर्स, अगर ये पोर्स के थ्रू एंटर करती है, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है, देन दैट इज कॉल्ड एज पोरोगेमी। देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पोरोगेमी। उसको हम पोरोगेमी कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स थ्रू पोरोगेमी, ओके। और इट में ऑल्सो एंटर थ्रू द चलासा लैंड। चलासा लैंड से आएगा तो घूम के आना पड़ेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज चलाजोगेमी। उस टाइम हम इसको क्या बोलते हैं? चलाजोगेमी बोलते हैं। एंड इफ इट एंटर्स थ्रू द इंटेग्यूमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज मीजोगेमी। तब हम इसको क्या बोलते हैं? मीजोगेमी, ओके। बीच में से कहीं से भी आ सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मीजोगेमी, ओके। अब देख लीजिए एक बार दोबारा से, हम बना लेते हैं वापस। सी दिस फिगर, हम साथ के साथ बना भी लेते हैं। देखिए हमने बनाया था एनाट्रोपस ओव्यूल, ओके। सो दिस इज आवर ओव्यूल बॉडी, देन दीज आर आवर इंटेग्यूमेंट्स। दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट, okay, and this is outer integument, and this is the funicle, okay, and here is raphe। ये raphe हो गया, this is raphe, okay। और बीच में क्या है? एम्ब्रियो सैक है, और ये न्यूसेलस, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, चलासा लैंड, micropylar end, okay, and this is funicle, this is raphe, okay। Now if the pollen tube enters, अब मैं pollen tube क्या कर रहा हूं? मैं pollen tube बना रहा हूं। if the pollen tube enters through the micropylar end, यहां से एंटर कर रही है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे?
दिस टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. ये क्या है? पोरोगैमी है, बिकॉज इट इज एंट्रिंग थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड. ओके. द सेकेंड, इट में ऑल्सो एंटर थ्रू द चलासल एंड. क्या हो सकता है? चलासल एंड से भी एंटर कर सकती है पोलन ट्यूब. देन दैट इज कॉल्ड एज चलाजोगेमी. इसको हम क्या कहेंगे? चलाजोगेमी. और तीसरा, कहीं और से भी एंटर कर सकती है. ओके. तो कहां से एंटर कर सकती है? चलिए देखते हैं. इट में एंटर थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंटेग्यूमेंट, और इट में एंटर थ्रू दिस पार्ट, यहां से या यहां से, दोनों में से, फ्रॉम एनी ऑफ द साइड्स, और अगर मल्टीपल पोलन ट्यूब्स हैं तो बोथ साइड्स पे. तो क्या हो जाएगा? उसको, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इंटेग्यूमेंट से या बीच में से. देन दैट इज कॉल्ड एज मीसोगेमी. ओके. सो दिस इज आवर वेरी कॉमन 3 टाइप्स ऑफ एंट्री इनटू द पोलन ट्यूब. नाउ व्हेन दिस विल एंटर इनटू द पोलन ट्यूब, आपको बताया जैसे ही ये पोलन ट्यूब में एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट इट विल एंटर थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस. फिलीफॉर्म एपरेटस से एंटर करता है. द केमिकल्स रिलीज बाय द फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे? दे विल अट्रैक्ट करेंगे. सो द ट्यूब न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूजेस with the synergid nucleus and it will degenerate. The second synergid will also degenerate. The function of synergids is over, so synergids will degenerate. The antipodal cells, they will also degenerate. So only egg cell and central cell is left. अब कौन कौन बच गया? एक egg cell बच गया और एक central cell बच गया. Okay. Now one of the male gametes will move towards the egg. अब दोनों में से क्या करेगा? वन मेल गैमीट विल मूव टुवर्ड्स द एग. ओके. और वो क्या करेगा फिर? फर्टिलाइजेशन. दैट फ्यूजेस विद द एग. सो एग इज हैप्लॉइड, मेल गैमीट इज आल्सो हैप्लॉइड. सो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विल बी डिप्लॉइड एंड दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. ओके. नाउ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी. इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी है. ओके. नाउ अब क्या हो गया? उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट, द सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई. अब दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या करेंगे? 2n बना देंगे पहले से. तो क्या हो जाएगा? 2 न्यूक्लियस और एक तीसरा न्यूक्लियस, टोटल 3 न्यूक्लियस विल फ्यूज एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. एंड दिस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसका नाम क्या है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ये क्या है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. और इसी पेन से आगे जाके क्या बनेगा बेटा? दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. इसी से आगे जाके क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा. एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. बार बार आपको बोल रहा हूं, एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू. जो नारियल पानी आप पीते हो वो सारा क्या है? एंडोस्पर्म है. दैट इज हाईली न्यूट्रिशियस ना. सो दैट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस. दिस इज ट्रिपल एन, 3n, तो ज्यादा न्यूट्रिशियस है. इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोर, देखिए जाइगोट क्या है? 2n है एंड एंडोस्पर्म क्या है? 3n है. अगर 2n से ज्यादा 3n होगा तो क्या हो जाएगा? 3n मतलब ज्यादा न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे. मोर क्रोमोसोम्स, ज्यादा क्रोमोसोम्स होने की वजह से द प्रोटीन कंटेंट विल बी हाई. प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा. ओके. तो एंडोस्पर्म में क्या हो जाएगा? प्रोटीन, अच्छा हाई क्वालिटी का प्रोटीन्स होंगे. कहाँ मिलते हैं? पल्सेस वगैरह में मिलते हैं, है ना. सो आप याद रखेंगे जो पल्सेस हैं वो ज्यादातर क्या है? उसमें एंडोस्पर्म है. नाउ अब क्या होगा? बिकॉज फर्स्ट मेल गैमीट इज फ्यूजिंग विद द एग. किसके साथ फ्यूज कर रहा है? एग के साथ फ्यूज कर रहा है. और क्या बना रहा है? जाइगोट बना रहा है. while the second male gamete fuses with the 2 polar nuclei and leads to the formation of PEN, primary endosperm nucleus. Okay. और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा.
Now because two times fertilization is occurring, now this event is called as double fertilization. इसीलिए इस इवेंट का नाम क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन. ये डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? दिस डबल फर्टिलाइजेशन was discovered by S.G. Nevesion. ये S.G. Nevesion ने पहली बार डिस्कवर किया था. He was the discoverer of the process. तो आप याद रखेंगे इस प्रोसेस को. This process is called as double fertilization. ओके, अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है. तो अब क्या क्या रहेगा? एक जाइगोट बन गया और एक क्या बन गया? एंडोस्पर्म बन गया. अब देखिए जाइगोट और एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या होता है नेक्स्ट. चलिए, अब जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म बन गया. व्हाट विल हैपन इनसाइड द एम्ब्रियो सैक? अब एम्ब्रियो सैक में क्या था? ये थे एंटीपोडल सेल, ये एग सेल और ये थी सिनर्जिड्स, और ये क्या था? सेंट्रल सेल, और यहाँ पे क्या था? हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस था, और ये हमारा एग सेल था. ओके, यहाँ पे सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया? यही एम्ब्रियो सैक है. द थ्री सिनर्जिड्स विल डीजनरेट. ये सिनर्जिड क्या? दीज एंटीपोडल सेल्स, इनका काम खत्म हो गया न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करने का. अब यहाँ पे क्या हो गया? सेंट्रल सेल, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, और यहाँ पे जाइगोट है. ओके, दिस इज 2n, दिस इज 3n, एंड सिनर्जिड्स दे हैव डीजनरेटेड. सिनर्जिड्स डीजनरेट हो गए. तो अब ये फुली फंक्शनल एम्ब्रियो सैक है. इसमें इस तरफ कुछ भी नहीं है. द थ्री antipodal cells have degenerated. One embryo is there, that is 2n. Okay, and here this is 3n. This is primary endosperm cell having primary endosperm nucleus, and this is our zygote. Correct. अब क्या होगा बेटा? The formation of endosperm precedes the formation of embryo. एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होगी एम्ब्रियो फॉर्मेशन से. सो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन precedes embryogenesis. Why? To ensure the formation of food or to ensure the nutrition for the growing embryo. Okay, अब कोई भी जो जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में ही क्या होते हैं? कॉटिलिडन. अगर डाइकॉट है then it has two cotyledon, and if it is monocot then single cotyledon. So the cotyledon is also the part of the embryo. cotyledon किसका part है? cotyledon is a part of embryo, leaf like structure, that is also the part of the embryo. Okay, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन किस में चला जाता है? cotyledon में चला जाता है. So zygote in the growth or during the development of the embryo, most of the endosperm is utilized. ज़्यादा से ज़्यादा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है. कुछ सीड्स में बच जाता है, और उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड. और जिन सीड्स में नहीं बचता उनको हम क्या बोलते हैं? दो सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ओके, सो दिस कंप्लीट्स our process of double fertilization. The next will be formation of endosperm and formation of embryo. Okay, formation of embryo होगा, formation of endosperm होगा. कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो एग apparatus है, okay, उसमें कितने सेल्स होते हैं? There are 3 cells. Correct. In if the pollen grain is released at टू सेल्ड स्टेज, पोलन ग्रेन्स जब टू सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है तो कितनी माइटोसिस होंगी और कितनी मियोसिस? सो 1 मियोसिस फॉलोड बाय 2 माइटोसिस. फर्स्ट मियोसिस से तो 4 माइक्रोस्पोर्स, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स ईच सेल विल अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. And after formation of vegetative and generative, the generative cell will undergo second mitotic division to form
2 male gametes. So 2 mitosis and 1 meiosis. ओके, ये हमेशा आपको याद रखना है. करेक्ट. देन ये जो फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, ये इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. करेक्ट. थैंक यू.